Now we discuss about the self-induction and self-inductance. 2 से लेके 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और 1 नंबर में डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं. तो we discuss about the self-induction, the phenomena by virtue of which the flowing current opposed by induced current in a coil. The phenomena by virtue of which the flowing current opposed by induced current in a coil known as self-induction. Now, is the coil, when we press key, current starts flowing. तो करंट एकदम पीक पे नहीं पहुंचेगी, it takes some time. अगर करंट हमें 5 एम्पियर भेजनी है तो 0 to 5 एम्पियर होने में कुछ मिली सेकेंड्स लगेंगे. उस मिली सेकेंड में फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट अपोज्ड बाय या फ्लोइंग करंट अपोज्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट, दिस फिनोमेना नोन एज सेल्फ इंडक्शन. मतलब कहने का ये हुआ, करंट एकदम पीक पे नहीं पहुंचेगी, इट टेक्स सम टाइम, डिले हो जाएगा. And this property known as self-induction. The phenomena by virtue of which the flowing current opposed by induced current in a coil known as self-induction. एक ग्राफ से समझो. Here the product graph is for growth. It takes some time. There is delay. Delay हो गया. ऐसे ही when you break the circuit, current एकदम जीरो पे नहीं आएगी. Again it takes some time. This phenomena known as, this property of the coil is known as self-induction. एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे AC जनरेटर है, डायनामो, और एक इनकैंडिसेंट लैंप लगा दो, बल्ब फ्लामेंट वाला, और जैसे जनरेटर आप ऑन करेंगे तो बल्ब एकदम फुल ग्लोनेस पे नहीं आएगा. जैसे अभी आप लगा दो बल्ब और AC आ रही है, तुरंत ऑन करोगे तुरंत ग्लोइंगनेस आ जाएगी. लेकिन जनरेटर के साथ ऐसा नहीं होता है. पीक होने में कुछ टाइम लगता है, धीरे 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 बढ़ेगा. और जब जनरेटर आप स्विच ऑफ करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी ऐसे डाउन होगी, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बढ़ने का पोज, घट रहा है तो घटने का पोज. ग्रोथ में भी टाइम लग रहा है, डिके में भी टाइम लग रहा है. दैट इज सेल्फ इंडक्शन. वो चीज यहां दिखाई जा रही है आपको. ऐसे दिखाया जा रहा है. इट्स फॉर ग्रोथ एंड इट्स फॉर डिके. दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. नाउ डिस्कस अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस. Experimentally found that the magnetic flux linked with the coil directly proportional to current flowing in a coil, or phi equals to Li, where L is the proportionality constant known as self-inductance of the coil or coefficient of self-induction. Self-inductance or coefficient of self-induction. We can define self-inductance from first equation. If I equals to 1 ampere, L equals to phi. If 1 ampere current flowing in a coil, then the self-inductance of the coil is equals to magnetic flux linked with the coil. ये पहली डेफिनेशन होगी. When 1 ampere current flowing in a coil, then self-inductance is equals to magnetic flux linked with the coil.
सेकेंड डेफिनेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। d5/dt is equals to L di/dt. From Faraday's second law is the magnitude of induced EMF. Now if di/dt is 1 ampere per second, तो हम यहां से डिफाइन करेंगे, if the rate of change of current in a coil is 1 ampere per second, then the self inductance of the coil is equals to magnitude of induced EMF in a coil. If the rate of change of current in a coil is 1 ampere per second, then the self inductance of the coil is equals to magnitude of induced EMF in a coil. ये सेकंड डेफिनेशन हो। और अब थर्ड डेफिनेशन लेके चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट्स। ये सब एक एक नंबर में आया करती है, चाहे फर्स्ट से डिफरेंशिएट कर लो, चाहे फर्स्ट से डिफाइन कर लो, चाहे सेकंड से डिफाइन कर लो। चलो फर्स्ट से डिफाइन करते हैं। इफ I equals to 1 ampere, now ऐसे कर लो, L goes to 5/I Weber per ampere, और that is known as Henry। तो कैसे डिफाइन करेंगे? If I goes to 1 ampere, phi goes to 1 Weber, then L goes to 1 Henry. If 1 ampere current flowing in a coil, so that the magnetic flux linked with the coil become 1 Weber, self inductance of the coil is said to be 1 Henry. If 1 ampere current flowing in a coil, so that the magnetic flux linked with the coil become 1 Weber, self inductance is equals to, or self inductance is said to be 1 Henry. तो इस तरह एक एक नंबर में डेफिनेशंस पूछी जाती है ना। अब लेके चल रहे हैं हम लोग 2 नंबर से लेके 3 नंबर में आया हुआ डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये 2 से लेके 3 नंबर में पूछा जाता है, वही लेके चल रहे हैं हम लोग। Self-inductance of a long solenoid. It is a solenoid, and as we know that from application of Ampere's circuital law, magnetic field produced by the solenoid B equals to mu naught Ni, where small n is the number of turns per unit length। इसीलिए इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता था B equals to mu naught Ni/L, where capital N is the total number of turns, small n number of turns per unit length। Now, magnetic flux linked with each turn of the solenoid. Magnetic flux linked with each turn of the solenoid. Phi dash goes to BA. Mu naught Nia/L. Mu naught Nia/L is the magnetic flux linked with each turn of the solenoid.
Now, total magnetic flux linked n phi dash, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल. म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल is the phi, and as you know that phi goes to li, so equate कर दो. So li equals to म्यू नॉट n square I a over n, or L equals to mu naught n square a by L. It's the expression of the self-inductance of long solenoid. Mu naught n square a by L इन बातों पे डिपेंड करेगा. और अगर आपने कोई मीडियम यूज कर लिया, suppose we insert an iron rod, then L equals to mu naught mu r n square a by L. It is self inductance. When we take some medium, mu r आ जाएगा, relative magnetic permeability. Relative magnetic permeability. म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एन, इससे सेल्फ इंडक्टेंस आपको मिल जाएगा. और ये 2 से लेके 3 नंबर में पूछा जा चुका है. एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है 2 मार्क्स. तो पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो 2 नंबर में बोर्ड में आ चुका है. तो पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके चलते हैं. और इस तरह उसका एक डायग्राम गिवन है. उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे. सुनो इसका स्टेटमेंट. फिगर shows an inductor L and a resistor R connected in parallel to a battery through a switch. The resistance of R is the same as that of the coil that makes L. माने ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और ये रेजिस्टेंस है वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे. 2 identical bulbs are put in each arm of the circuit. ये आइडेंटिकल बल्ब लगे हुए हैं, आइडेंटिकल B1 and B2, these are identical bulbs. Which of the bulb, which पहला पार्ट है इसका, which of the bulb lights up earlier when switch closed? पहले कौन सा बल्ब जलेगा? सेकेंड पार्ट भी है. Will the brightness of the bulb will be same after some time? ये 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, और ये बोर्ड में 2 मार्क्स में 2-3 बार आ लिया है. तो बल्ब आइडेंटिकल हैं. ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और यहां से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है दोनों आपस में बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एंड दीज 2 बल्ब्स आर आइडेंटिकल. तो पहला पार्ट है कि कौन सा बल्ब पहले जलेगा, और दूसरा पार्ट है क्या उनकी ब्राइटनेस बाद में बराबर हो जाएगी. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो फर्स्ट B1 जलेगा,
पहले V1 की ब्राइटनेस जल्दी आएगी, V1 पहले जलेगा V2 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रेजिस्टेंस भले ही बराबर ऑफर हो रहे हो, लेकिन यहां पर इंडक्टर लगा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। और आपको पता है अपोज करता है, जब तक करंट पीक तक न पहुंच जाए तब तक उसका अपोज होता रहता है, डिले हो जाएगा यहां पर, दैट इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। डिले आ जाती है, डिले हो जाना है, करंट एकदम पीक पर नहीं पहुंचेगी, इट टेक सम टाइम, और इसीलिए B2 थोड़ी देर में जल पाएगा। तो पहले का आंसर क्या हुआ? पहले कौन सा बल्ब जलेगा? B1। और B2 देर में क्यों जला? ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, डिले हो जाएगा, ग्रोथ जो हो रही है तो ग्रोथ में डिले हो जाएगा, करंट एकदम पीक पर नहीं पहुंचेगी, इसलिए। और अब सेकंड पार्ट का आंसर, क्या बाद में उनकी ब्राइटनेस बराबर हो जाएगी? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ इंडक्शन तब तक है जब तक करंट चेंज हो रही है, जैसे ही करंट पीक पे पहुंचेगी, फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो इंड्यूस्ड करंट नहीं होती है, तो फ्लोइंग करंट का अपोज नहीं होगा, इसलिए थोड़ी देर बाद दोनों की ब्राइटनेस सेम हो जाएगी। क्लियर? तो ये 2 मार्क्स में आया क्वेश्चन था, बोर्ड में 2-3 बार आ लिया है। और अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट सुने पहले। अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 3 centimeter and length 1 meter has 600 turns per meter. What is its self-inductance? Will the value of self-inductance change if it is wound on iron piece? दोबारा सुनो स्टेटमेंट। A solenoid of radius 3 centimeter, इसका मतलब है कि R गिवन है, तो यहां से एरिया निकालेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, ये एरिया बन गया। है 600 टर्न्स पर मीटर, इसका मतलब स्मॉल n इज गिवन, पर मीटर। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? ये पहला पार्ट है इसका। फॉर्मूला पता है आपको, L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l, और आपको पता है स्मॉल n ये होता तो ये हो जाएगा nl, और आपको पता है L 1 मीटर दिया हुआ है, L इज 1 मीटर, दैट्स व्हाई 4 pi 10 to the power minus 7, 600 into 600 into pi 0.03 का स्क्वायर, ये बन गया, ये तो बन है। ओके, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.28 10 to the power minus 3 Henry, L equals to 1.28 into 10 to the power minus 3 Henry। लेकिन इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, और पार्ट क्या है? एक और पार्ट क्या है? Will the value of self-inductance change if it is wound on an iron piece? तो क्या होगा आपका आंसर? अभी डेरिवेशन कराया था मैंने आपको, इसमें आयरन रोड इंसर्ट की थी, तो आपको फॉर्मूला पता है इसका, L इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर a बाई l, ये था।
म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा, और चेंज का मतलब इंक्रीज भी होगा, इट विल इंक्रीज। ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ नंबर है। इज इट क्लियर? तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल। क्लियर?